डू यू रियली वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट यू? मैं ये नहीं कह रही कि अपना बिच मोड ऑन करके ओ माई गॉड ऐसे करने लग जाना. नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम स्पीकिंग टू यू. आई एम स्पीकिंग टू यू द रियल psychological ways to make people respect you, because you need respect. Of course everybody needs respect, but in order to make people respect you, you need to do little psychological tricks, which means you need to put little effort on yourself. Hi everyone, welcome back to my channel. Before telling you who I am, I will like to, if you like the tagline of it, just subscribe and click the bell icon so that every week I can share something like this to you which is gonna change your life. So I'm the manifestation therapist Kashish Rajpal, and today I'm gonna share amazing tricks and techniques which you are going to apply in your personal life in order to make people respect you, and this is psychologically proven. So अब मैं साइकोलॉजिकली प्रूवन कह रही हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं मेरे पास मैनिपुलेटिव टेक्निक है और मैं डार्क साइकोलॉजी को फॉलो करती हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अभी तक तो मैं डार्क साइकोलॉजी को फॉलो नहीं करती. आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर. मे बी समडे आई विल, बट नॉट नाउ. नॉट नाउ, नॉट नाउ गाइज, नॉट नाउ. हियर वी डोंट टीच थिंग्स लाइक दैट. Okay, coming back to the point, you need respect, I need respect. In order कि हमको लोगों से रिस्पेक्ट मिले, हमको कुछ करना पड़ता है. ठीक है, तो मैंने अपने पॉइंट्स को जॉट डाउन करे हैं सो दैट आई डोंट फॉरगेट teaching you something or missing out on something. So don't mind if I look down, just to catch one point. What was the point? Okay, just don't mind that. I hope you don't. Okay, the first things first, when you walk into the room you need to be confident. अभी कितनी बार ऐसा होता है ना पार्टीज में कि जब हम पार्टीज में जाते हैं या कहीं हमारे अननोन लोगों के बीच में जाते हैं या स्ट्रेंजर्स के बीच में जाते हैं या बर्थडे पार्टीज हैं या वेडिंग्स हैं या व्हाटसोएवर इट इज, हम ना चाह के साइड में खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है people should come to you. Why people should come to you? They have so much time, they should come to you. What you have done? Are you some god or some god-like personality कि लोग तुम्हारे आके चरण छुएं? No, ऐसा नहीं होता है. You need to make sure कि लोग तुम्हें आके respect करें, and for that you need to walk confidently. You need to walk in a way that you are, you have this अल्ट्रा करिस्मेटिक पर्सनैलिटी. जिस दिन तुमने ये अपने ब्रेन के अंदर बिलीव कर लिया, तुम्हारी चाल बदल जानी है. मैं सच्ची बता रही हूँ. जस्ट एक मिनट के लिए भले ये वीडियो पॉज कर लो और सोचो यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन द रूम, और फिर एक वॉक करो. तुम्हारी वॉक में, तुम्हारी चाल में बदलाव आ जाएगा. एंड दैट्स वेयर द फर्स्ट थिंग कम्स इन, दैट यू नीड टू वॉक इन अ वे दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. एंड व्हेन यू वॉक लाइक दैट, people get attracted to you, the eyes get on you, and you will like that. Trust me, just one time, just do this with any of the party or any of the place. Just see how it impacts your confident level. And most importantly, the added point in the first point itself is that you need to introduce yourself. Why people should come to why people should come to ask you ki, hi, I'm this, I'm that. You need to go to people. Hi, my name is this, my name is this. You have to go. When you have the courage कि आप अपने आप को 100 लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिना झिझक के, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा. अब तुम बोलोगे लोग मुझे पहचानने चाहिए. अरे यार, तुम खुद तो अपने आप को पहचान लो पहले, फिर दुनिया को बोलना लोगों को पहचानने के लिए. You got to make your personality so charismatic instead of burning your ego कि लोग मुझे जाने, and मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, लोग मुझे ऐसे जाने. नहीं, you need to introduce yourself in such a confident way that people next time come to you. I tell you this, with me what happened when I was doing this life coaching thing now, when I was beginning this, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा, जहाँ मैं रहती हूँ उस पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया था. ठीक है, तो I never thought कि ऐसा कुछ होगा, तो I always used to introduce myself. तो फिर मुझे लोग खुद आगे बढ़ के बोलने लगे, हाँ मैं तो जानती हूँ, आप वो काम करते हो ना, आप वो दिमाग के डॉक्टर हो ना, आप वो ऐसे करते हो ना, आप वैसे करते हो ना. एंड देन दैट इंक्रीजेज माई कॉन्फिडेंस, बिकॉज अगर मैं खुद जाके बात नहीं करती तो लोग मुझसे कैसे बात करते. किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग आपसे आगे बढ़ के बात करेंगे. यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. दैट्स अ बिग साइकोलॉजिकल ट्रिक जो लोग नहीं कर पाते हैं. द सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स योर पॉस्चर. अब तुम खुद सोच लो, अगर मैं यूं बैठ करूँ, हाय एवरीवन, माय नेम इज दिस, प्लीज वॉच माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन, तुम देखोगे क्या? नहीं, तुम नहीं देखोगे. तो योर पॉस्चर शुड बी ऑलवेज फिक्स्ड. अभी यू कैन डू वन थिंग, अगर आपका ज़्यादा लैपटॉप पे काम है, आपका पॉस्चर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आपको पता है कि इसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक बेल्ट आता है
जो पॉस्चर करेक्टर बेल्ट होता है, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट भी सजेस्ट करते हैं और बहुत सारे मना भी करते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू, उस पर मैं कोई सजेशन नहीं दूंगी, बट दैट कैन रियली हेल्प यू टू फिक्स योर पॉस्चर. बट मेक श्योर वेन एवर यू आर वॉकिंग इन टू द रूम, यू शुड बी नॉट लाइक दिस. Hi, how are you? My name is this. No. Hi, my name is this. How are you? I hope you're doing good. Thank you for asking. Have certain words for yourself. कि मतलब कभी भी कोई पूछे ना तुम कैसे हो, तो उसके बाद में तुम्हें थैंक यू फॉर आस्किंग ये बोलना जरूरी है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करेगा तुम में और उनमें, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि उन्होंने वो ये वीडियो नहीं देखे तो वो नहीं बोलेंगे. तो नेक्स्ट टाइम कोई भी तुमसे पूछे कैसे हो, तुम बोलोगे मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग. दैट विल मेक अ डिफरेंस. कि यार ये तो कुछ अलग बोल रहा है, मैं अच्छा हूँ, अभी तक सुना था, थैंक यू फॉर आस्किंग तो नया सुना. That will increase your confidence, and trust me, when this is a posture is corrected, you are more like this, people come to you, they catch the vibration. अभी तुम खुद सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान से बात करना पसंद करोगे जो ऐसा बैठा रहता है सारा दिन? करोगे क्या? नहीं करोगे ना. तो तुम किसी ऐसे इंसान से बात करना पसंद करोगे ना. तो just make sure you behave like you are the most confident person. That's the second point. The third point is don't be easily available. Now I'm telling you this, I personally did this in my personal life when I was cutting down lot of friends of mine. जब मैं लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री में आ चुकी थी और मैं क्लाइंट्स लेना शुरू कर दिया था, दैट वाज जब मैं 18 साल की थी, तब की बात बता रही हूँ. जब मैं 18 साल की थी तो फिर मैंने क्या किया, मैं ये बात उस समय समझ गई कि आई डोंट हैव टू बी अवेलेबल फॉर देम नाउ, बिकॉज आई डोंट नीड देम इन माई लाइफ नाउ. अब मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में. तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतने बड़े बड़े ग्रुप्स होते थे, क्योंकि मैंने 3-4 स्कूल चेंज किए थे, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स होते थे जो हम साथ में बैठते थे. बच्चे होते तो कैफेज वगैरह, यू नो, रोमिंग अराउंड डूइंग द बुलशिट थिंग्स हम सब करते थे. बट देन आई रियलाइज आई डोंट नीड देम इन माई लाइफ. मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और ना मुझे वो चाहिए. तो जब वो कुछ लोग भी बच गए ना, कट होते कुछ लोग भी बच गए ना, I was not easily available to them. They were used to message me कि कहाँ है, क्या है. I was not available for them. तो that, you know, और फिर कहीं मार्केट में कभी उनसे मिल लो और उनके मुंह से तारीफ निकलती थी ना, that made me understand if I'm not available, I am more, you know, जैसे डिमांड ज़्यादा है मार्केट में फिर. That's how it works. It's a psychology. अगर आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहोगे तो वाई पीपल विल रिस्पेक्ट यू. आई एम नॉट सेइंग अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं रहो. आपके पापा को कुछ हो रहा है, आपकी मम्मी को कुछ हो रहा है, आपकी बहन को कुछ हो रहा है, आपके भाई को कुछ हो रहा है, आपकी वाइफ को कुछ हो रहा है, आपके पति को कुछ हो रहा है, तो आप उसके आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को भी कुछ हो रहा है, तो उनके लिए अवेलेबल नहीं रहो. प्लीज ऐसी ट्रिक्स को उनके साथ इस्तेमाल मत करना. इट्स जस्ट टू मेक यू कॉन्फिडेंट. तो प्लीज इसको उसी तक रखना, ठीक है. अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना, किस वजह से तुम ये सुन रहे हो. तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव अ वेरी लिटिल सर्कल ऑफ योर्स. Don't have every Tom, Dick and Harry in your life. No, you are not meant for every Tom, Dick and Harry. तुम्हारी जिंदगी टॉम डिक एंड हैरी पे वेस्ट करने के लिए नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर एरे गहरे के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो. नो, दैट विल नॉट मेक यू कॉन्फिडेंट, एंड दैट विल नॉट मेक यू सक्सेसफुल, एंड दैट विल नॉट मेक यू ग्रो. सिंपल ग्रो नहीं कर पाओगे जिंदगी में. अपने लिए लोगों को सेलेक्ट करो, बहुत सेलेक्टिव हो जाओ, बहुत ज़्यादा. भले कोई नहीं बचे. मेरी लाइफ में पर्सनली एक टाइम था 3 to 4 years मेरे पास कोई दोस्त नहीं था. आई यूज टू ओनली रोम विथ माई मम्मा. आई डेंट हैव एनी पीपल बिकॉज आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी डिजर्विंग था मेरे साथ रहने के लिए. आई एम सॉरी इफ एनीबडी इज वॉचिंग दिस, बस मुझे ग्रो होना था, मुझे आगे बढ़ना था, और मैं उन फालतू बातों से उभरना चाहती थी. मेरी जिंदगी में मुझे वही लोग चाहिए थे जो मुझे ग्रो करे. और इमोशनल सपोर्ट के लिए आई यूज टू हैव मम्मा, आई यूज टू हैव पापा, तो मुझे वो इमोशनल, आई यूज टू हैव माई सिस्टर, तो मुझे वो इमोशनल कोटा की जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा, ठीक है. तो मेक श्योर दैट नॉट टू बी इजीली अवेलेबल फॉर द पीपल. कि कोई बुला रहा है, आ जाना, यहाँ चलना. स्टॉप. थिंक अबाउट, इफ यू वांट टू गेट रिस्पेक्टेड, you need to stop roaming around with every Tom, Dick and Harry. Simple. Tom, Dick and Harry तो तुम समझते ही हो ना क्या है. इतने समझदार तो तुम हो कि Tom, Dick and Harry का मतलब समझते हो, ठीक है. The next point is, okay, now this is really important and this will really help you to gain lot of respect in people's life. अभी ऐसा नहीं है कि तुम भगवानी रूप में धरती पे उतरे हो, ऐसा नहीं है. तुम इंसान रूप में उतरे हो, तो तुमसे गलतियां हो सकती है. हाई चांसेस है कि तुम बहुत गलतियां करोगे. पर एक कहते हैं ना, सॉरी बोलना और जेन्युइनली सॉरी बोलने में बहुत अंतर होता है.
एक बात सुनने में और जेन्युइनली आपकी बात को सुनने में फर्क होता है. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सेइंग सॉरी. अगर तुम ऊपरी भाषा से सॉरी बोलते हो ना, तो वो वाइब्रेशन, अभी तक तुम मेरे चैनल पे आए हो तो तुम ये बात समझ गए होगे कि वाइब्रेशन मैच कर जाती है. अगर तुम किसी को बोल रहे हो सॉरी, तो भाई वो समझ जाता है कि ये इंसान मुझे पागल बना रहा है और इसको ये बात खत्म करनी है, कुल मिला के ये चैप्टर क्लोज करना है. बट अपन ये बात समझना भूल जाते हैं कि जेन्युइनली सॉरी का इम्पैक्ट हमारे रिश्तों पे क्या होता है. अब तुम इतना समझ गए हो कि तुम्हें अपना सर्कल कम रखना है, तुम्हें चीज़ें एवरी टॉम डिक एंड हैरी को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना है, तो मतलब कुल मिला के तुम्हारे पास नी करके 3 रिश्ते भी बच जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है. ठीक है, 3 रिश्ते भी हो जाए ना, बहुत गनीमत की बात है ये. पर अगर उनके साथ भी तुम ऐसे सॉरी बोलोगे, ठीक है, और जेन्युइनली सॉरी नहीं बोलोगे, तो सोचो वो जो बच्चे कुछ रिश्ते हैं वो भी चले जाने. जस्ट इमेजिन. क्योंकि जेन्युइनली सॉरी का मतलब क्या होता है पता है? नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक अगेन. आई वॉन्ट रिपीट द मिस्टेक अगेन. सॉरी मतलब ये नहीं होता चैप्टर क्लोज का, नेक्स्ट गलती वापस ये दोहराऊंगा परसों या तरसों, या वापस ये दोहराऊंगी परसों या तरसों. नो, दैट्स नॉट. या महीने भर बाद, या 4 महीने बाद, या साल भर, या 2 साल बाद. इट जस्ट जेन्युइनली मीन्स कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट कि मुझसे जेन्युइनली ये मिस्टेक हो चुकी है, अब मुझे जेन्युइनली इसको सुधारना है. वेरी फ्यू पीपल डू इट, बट जो लोग कर पाते हैं ना ऐसा, मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब मैसिव रिस्पेक्ट आ जाती है आपके रिश्तों में अगर आप ये कर पाते हो. मैसिव. और पता है रिश्ते में यू नो इट्स अ वेरी फैंसी कोट समवेयर आई हैव रेड इट कि प्यार क्या होता है. प्यार कुछ नहीं होता है, जस्ट रिस्पेक्ट एंड एडिक्शन टुवर्ड्स द पर्सन. और सच्ची में प्यार होता क्या है? इट्स द एडिक्शन टुवर्ड्स. हम एक इंसान के साथ इतना समय रह लेते हैं कि हमें एडिक्शन हो जाता है उनका, इसलिए हम उनको छोड़ नहीं पाते. एंड रिस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लव. क्योंकि एक फिजिकली जो अब्यूज करते हैं लड़के को रिश्तों में, बहुत सारे ऐसे रिश्तों में होते हैं, वो भी बोलते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अपने आंसू निकाल देते हैं और उनको घर पे आके मारते भी हैं, और वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चिल्लाते भी हैं और बोलते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ. बुलशिट. गिव मी अ ब्रेक पीपल, जस्ट गिव मी अ ब्रेक. In a relationship, genuinely respect is more important than love. Love is what? लव तो मुझे लगता है 4 दिन की चांदनी है, जो वाइब्रेशंस फील होते हैं, एंड देन इट्स एडिक्शन टुवर्ड्स अ पर्सन, कि हमें किसी इंसान की ऐसी आदत लग जाती है कि हम उसको नहीं छोड़ पाते. सिंपल, राइट? तो दैट्स माय 4th पॉइंट. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ओके, दिस वन इज हैवी. ये मेरे को करने में बहुत समय लगा था, मैं आज भी उस पर वर्क कर रही हूँ. ऐसा नहीं कहती कि मैं दूध की धुली हूँ, मुझसे गलतियाँ नहीं होती, बट मैं भी आज भी इस पर वर्क कर रही हूँ. विच इज़ नॉट एक्टिंग ऑन इमोशंस. अच्छा, जस्ट इमेजिन करो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, ठीक है, और अचानक से आप हाइपर हो गए और अचानक से आप चिल्लाने लगे उस बात पे. विल यू लूज द रिस्पेक्ट और विल यू गेन द रिस्पेक्ट? यू विल लूज द रिस्पेक्ट. एंड इसके लिए आपको अपना ट्रॉमा भी हील करना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम इट्स अ ट्रॉमा कमिंग अप अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो नॉट एक्टिंग ऑन द इमोशंस इज द बिग वन. पीपल, आई ऑल्सो practice it a lot because it's heavy on everybody, because हम इतने ज़्यादा addicted हैं रिएक्ट करने पे कि हमें अपने सेंसेस में आके बात करना हम भूल चुके हैं, चाहे वो कोई भी हो. नहीं, बहुत सेंसेस में आके बात. तो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ नॉट एक्टिंग ऑन इमोशंस एंड इंस्टेड लिसनिंग टू इट डीपली and behaving like, okay, I got it. Simple. Okay, I got it. So imagine such kind of a respect you will gain in the situation where person is coming and saying something to you, and you will be like, okay, I get it. Kind of respect you will get. Oh my God, I can't even imagine what kind of a respect you are going to get after this. Just try it out. It's tough one. It's a very tough one. It's a big one. But if you do it, respecting, you will get respect a lot. Okay, then the next one, don't take anybody's disrespect. I have seen lot of people कि है ना, जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. पर सबसे बड़े बेवकूफ़ तो वो लोग होते हैं जो डिसरिस्पेक्ट ले लेते हैं. डिसरिस्पेक्ट मतलब सबको समझ में आता है कि कोई भी आपकी इंसल्ट कर रहा है, शेम कर रहा है आपको, तो आप चुप करके सुन रहे हो. मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा बहुत बार किया है, एंड स्पेसिफिकली मुझे लगता है आफ्टर मैरिज मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है जहाँ पे मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही, बिकॉज समटाइम्स यू आर जस्ट बॉन्ड विद द boundaries of relationship. But then when I figured it out, I realized no, I don't want to take this shit.
एंड आई गॉट टू स्पीक फॉर माई सेल्फ, एंड इफ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, और कुछ हो ना हो, मैं अपनी नज़रों में तो खड़ी रहूंगी कम से कम, बिकॉज नो बडी इज कमिंग टू सेव यू, ट्रस्ट मी, नो बडी इज कमिंग टू रिस्पेक्ट यू अंटिल एंड अनलेस यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. अगर कोई कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डोंट टेक दैट शिट, जस्ट प्यार से बोल दो आई एम सॉरी व्हाट जस्ट सेड. इसका एक वो क्या नाम है, मेरेसा पेयर इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट कहलाई जाती हैं वो. आरटीटी वो सर्टिफिकेशंस भी देती हैं, और उनका जब मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया था तब मुझे ये समझ में आया था कि जब भी लोग आपको क्रिटिसाइज करें या डिसरिस्पेक्ट करें, आपको एक टेक्निक है जो बोलनी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, विच इज व्हाट, सॉरी आपने क्या कहा. इसके बाद इंसान अपने कॉन्शियसनेस में आ जाएगा कि वो बकवास जो उसके मुंह से जो बकवास निकल रही है वो है क्या, वो कॉन्शियसनेस में आ जाएगा. सेकंड चीज आप इसके अंदर कर सकते हो, मैंने आपको सुना नहीं, क्या बोला आपने, उसके बाद वो वापस कॉन्शियसनेस में आ जाएगा कि इसने सुना ही नहीं तो आप चुप हो जाता हूँ. डोंट टेक दैट रिस्क. ये बहुत एक छोटी सी टेक्निक है आरटीटी की, जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो. पर इसको प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि जब डिसरिस्पेक्ट तुम्हारे सच्ची में सामने आए तो तुम बोलो हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ. तो जस्ट इसको याद रखना, इट इज रियली गोना हेल्प यू एंड इट्स गोना टेक योर पावर बैक. क्योंकि जब कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो आप अपनी पावर उसको दे देते हो, क्योंकि आप हर्ट हो जाते हो तो आप अपनी पावर दे देते हो. एंड ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हम हर्ट तो होते हैं, ठीक है, बट ऐसी चीजें करके यू आर गोइंग टू सेव गार्ड योर पावर. आप मतलब बच जाओगे अपनी पावर देने से. मैंने बहुत बार ऐसी गलती करी है कि जब लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट करके चले गए और मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ. एंड देन नाउ आई हैव फाइनली कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि नोबडी इज कमिंग टू सेव यू. तो दिस इज द टेक्निक यू कैन डू द नेक्स्ट टाइम someone disrespect you, because you need to respect yourself. Okay, the second one, the another one is practice self respect. अभी कितनी बार आपने अपने आप को अपने बारे में बकवास करते हुए सुना है, मुझे सच्ची बता देना. मतलब कितनी बार, मैं कुछ नहीं कर पा रही है, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, मैं विक्टिम कार्ड, चलो कार्ड खोलते हैं, विक्टिम कार्ड खोलो, मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही. बुलशिट. स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर जर्नी. आई एम टेलिंग यू, देखो टफ होता है, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि दिस इज टफ. हीलिंग योर ट्रॉमा इज टफ, पास्ट को भूलना इज टफ, उस चीज़ से ओवरकम करना इज टफ. ये आपने मेरी ट्रॉमा टू कोच, लाइफ कोच वाली वीडियो में सारी मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी जान चुके हो. एंड नहीं जानी तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी. तो यू नीड टू बी लाइक यू नो, प्रैक्टिस सेल्फ रिस्पेक्ट. तुम सर्टेन बॉडी टाइप के हो तो वैसे कपड़े पहनो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे. ऐसे कपड़े मत, ऐसे विक्टिम कार्ड मत प्ले करो कि मैं पतली नहीं हूँ इसलिए मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती. जस्ट स्टॉप दिस बुलशिट. यू गॉट टू स्टॉप दिस, बिकॉज जब तक आप ये कार्ड प्ले करते रहोगे ना, आप कभी भी अपनी नज़र में या किसी और की नज़र में रिस्पेक्ट नहीं पा सकते. और बहुत छोटी सी जिंदगी है, मैक्सिमम 80 साल जीने वाले हो, लाइक लेजेंड 80 मैक्सिमम, ठीक है. तो कितना टाइम बचा है कैलकुलेट कर लो. तो कैसी जिंदगी जीनी है ये भी कैलकुलेट कर लो. समझ में आ रहा है. मैं ये नहीं कहूँगी कि सेटबैक्स नहीं आएंगे, तुम अचानक से मास्टर बन जाओगे हर चीज़ में, नहीं. मैं भी बहुत चीज़ों में मास्टर नहीं बन पाई हूँ, बट वन थिंग एट अ टाइम. वन प्रैक्टिस फॉर 1 month कैन डू वंडर्स. वन प्रैक्टिस 1 month can do extraordinary wonders in your life. The next but the last one and my favorite one, avoid gossip. You know, avoid gossip and drama, because now I have realized and I have come to a point कि I don't like people who are gossiping. Of course I like to gain information about something what's happening, but like एक ही बात को 50 बार कोई बोल रहा है and they are getting entertained by the fact that other person life is not good. और जब मैं सोचती हूँ कि मेरे बारे में भी तो किसी ने किसी समय में उन्होंने ऐसा किया होगा, तो अगर मुझे सुनने में ये बात आ जाती तो मुझे कैसा फील होता. और हम कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक्चुअली में हमें फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा. तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो तो यू नीड टू स्टॉप डूइंग इट फॉर अदर्स ऑल्सो. क्योंकि सबकी लाइफ अपनी अपनी है, सबकी एक जर्नी चल रही है, सब अपने आप में एक जंग लड़ रहे हैं, चाहे उनके पास कम बुद्धि हो या ज़्यादा बुद्धि हो, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हो. मेरे बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ बोला है, तो नाउ अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार जब मेरे बारे में बोला होगा तब मुझे सुनने में आ जाता तो मुझे कैसा लगता. वो झूठ भी था, बहुत सारी बातें गलत थी, जो जैसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो मैं क्यों उस पर पाई, क्योंकि गॉसिप करना क्या होता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आप उसके ऊपर 2 अपनी बातें डालोगे और आगे सर्व करोगे. दैट्स गॉसिपिंग.
let's accept it, that is gossiping. You got to stop gossiping, because जब आप like minded लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, they don't have room for gossiping, they don't have room for shift, and this is the main reason I have cutted so many people from my life, and this is the main reason कि मेरी life में ज़्यादा दोस्त नहीं हुए, because I don't like these people around me जो इतना ज़्यादा, even I still have few people, अब वो family relations में है जिनको मैं cut नहीं कर पा रही हूँ, and just they are just information giving processes going on, but I like myself like okay, I listen and then I stop, okay, then I stop. I don't call somebody कि देखो देखो ऐसा हो रहा है उसकी ज़िंदगी में ऐसा, no, I just don't turn it around, I just don't put it around again, I just stop it, because मुझे ऐसा लगता है कि people who gossip, they are not respected. एंड पीपल हु आर लाइक माइंडेड, मेरे को जिन लोगों के साथ उठना बैठना है उनके डिक्शनरी में तो गॉसिप नाम की चीज़ भी नहीं होती है, एंड इट जस्ट लोअर योर वाइब्रेशंस अ लॉट, तो मैनिफेस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, मेरे शामन ऐसा कहते हैं. सो आई हैव लिटरली स्टॉप डूइंग इट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन डू साइकोलॉजिकली टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू, एंड आई रियली होप you have understood something and you have gained some knowledge, and just make sure to just simply do one thing, one step a time. एक महीने में एक टेक्निक को प्रैक्टिस करो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट, एंड सून यू विल बिकम द मास्टर ऑफ मेकिंग पीपल रिस्पेक्ट यू, एंड वंस यू डू इट, ट्रस्ट मी, you will feel so glad and you will feel like ऐसे हो जाना है, फिर I'm the one, ऐसे हो जाना है. तो just do it and make sure not to keep stupid people around you, because stupidity creates more stupidity and you are not going to be successful. So if you want to be successful, if you are watching this, I believe कि तुम्हें successful होना है. अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो कचरे से तो निकलना पड़ेगा. कमल का फूल भले कीचड़ में उगता है लेकिन भगवान को तो निकलने के बाद ही चढ़ता है. हर बार मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ आपको. तो नाउ इट्स टाइम टू कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, बिकॉज आई नो कि तुम्हें चाहिए लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें, एंड दिस इज द वे कि मैं तुम्हें हेल्प कर सक रही हूँ. So if you can share it with another person, it will be great help for them to make people respect them, क्योंकि हम जैसी energy flow करते हैं वैसी energy हमारे पास वापस आती है. Okay, so I will see you in the next episode in the same place at the same time, but before that I have an announcement. If you want to get my free ebook, just click the link below and get my manifestation free ebook, which has some amazing knowledge in it, and if you apply it, you can transform your life, and that's my promise to you कि मेरी जिंदगी तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में ही जाएगी. So you decide that you want to transform your life or not, because I am here to serve you for better. Bye, take care.